So we're celebrating all the women because it's Women's Day today. और हम सारी महिलाओं को आज मनाएंगे क्योंकि आज महिला दिवस है And we really honor all the women in the house. और हम सारी महिलाओं को आदर देते हैं. We respect you all. हम आप सबको आदर देते हैं. You've been pillar of strength to the body of Christ. और आप मसीह के देह के आप खंबे रहे हैं ताकत के बल के. You've been pillar to your families. आप अपने घर के लिए एक खंबे की तरह रहे हैं. There are some who have not started families, but you already have the foundation of it in your life, and one day when you start it, you're going to lay a good foundation, is what I'm believing. और आप में से कई लोग हो सकता है परिवार चालू नहीं किए होंगे, पर आपके पास अब वो नींव है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक अच्छा परिवार चालू करेंगे. So I want all the men to stretch your hands towards all the sisters who are standing next to you, except your wife. और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मर्द हैं अपनी बहनों की तरफ अपने हाथों को उठाएं. अगर वाइफ की तरफ हाथ जा रहा है तो कोई बहन की तरफ घुमाना, ठीक है? It's going to your wife, turn it to a sister today. ठीक है, come on, अपने हाथों को उठाओ. Raise up your hands. Come on, we're gonna bless them. हम उनको आशीष देंगे. We're gonna bless them. Come on, अपने मुंह को खोलकर, जितने भाई लोग हैं, अब आपकी आवाज आनी चाहिए. मैं चाहता हूँ आप बहनों को आशीष देना शुरू करो. And to all the brothers, I want you to start blessing the sisters here. वचन कहता है जिसको आप आशीष दोगे परमेश्वर उसको आशीष The देगा. word says, whomever you bless, the Lord will So bless. start blessing them right now. अभी उनको आशीष देना चाहता Father, हूँ. as the body of Christ, और पिता मसीह की देह होने के all the नाते brothers right now, और हम सारे भाई together we bless our हम एक sisters. साथ मिलकर हमारी बहनों को आशीष Lord, I देते हैं. pray that our sisters will possess the gates of enemies. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु कि हमारी बहनें जो शत्रु है उसको थाम लेंगी They'll stop the enemy, और वो उसको रोकेंगी possess the gates of the enemy, और वो उसके द्वारों को जकड़ लेंगी and stop the plans of the enemy before even they happen. और इसके पहले कि वो काम हो वो शत्रु के प्लान्स को रोक देगी, योजनाओं को रोक देंगी. And I pray, oh Father, और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता they'll be fruitful in this land. वो इस भूमि में फ्रूटफुल रहेंगे, फलवंत रहेंगे. Their name will be great. उनका नाम महान होगा. You will extend their boundaries. आप उनकी सीमाओं को फैलाएंगे. Give them favor. उनको आप तरफदारी देंगे. Give them grace. उनको अनुग्रह देंगे. So as a body of Christ, और मसीह की देह होने के नाते we bless our sisters. हम हमारी सिस्टर्स को We ब्लेस bless करते the हैं. mothers. हम माँ को ब्लेस करते We हैं. bless the wives in this house. और जो भी वाइफ्स हैं यहाँ पे हम उनको ब्लेस करते May they keep growing in Jesus हैं. and the word of वो God. यीशु में और परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहे. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमेन. क्यों ना जितने पुरुष लोग हैं हम जोरदार ताली बजाएंगे. Can all the men clap for the sisters? हाँ, आप हाउलिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और मैं चाहूंगा हमारी टीम जल्दी से, we've got a little gift for you हमारे पास आपके लिए छोटा सा तोहफा है and we celebrate you and this is the sign of that celebration. और हम आपको मनाते हैं और ये चिन्ह है मनाने का. So as you receive the rose, you can sit down in your place और जैसे आप रोज लेते हैं आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं and we'll transition into the sermon. और हम वचन में जाएंगे अब. Some of the sisters are like looking at the rose. We were expecting a dress, pastor. और हो सकता है कई सारे सिस्टर लोग रोज को देख के कह रहे होंगे पास्टर हमें एक ड्रेस कम से कम My चाहिए heart थी. is saying amen for next year, okay? और अगले साल के लिए मेरा दिल आमीन कह रहा है. So we'll do much better next year, okay? अगले साल हम बहुत अच्छा करेंगे. But let this rose tonight be a token of love from Bethel Church of Nations. और ये रोज एक प्यार का एक चिन्ह हो बेथल चर्च की तरफ से. There are few at the back. Come on, so good. Okay, so all the sisters have a rose, right? सारी बहनों के पास रोज है. Right? Okay, perfect. Celebrate your day. अपने दिन को आज मनाएं. If your husband forgot that it was Women's Day, अगर आपका पति भूल गया कि आज वुमेन्स डे था, maybe you can show the rose. हो सकता है आप उनको अपना फूल दिखा दें. Tell them, hey, now you can give me a bouquet. अब आप मेरे को एक बुके दे सकते हो. Yeah, guys, if you need a seat, there are 2 chairs here, 1 chair over here. You can come in the front. For those अगर who are किसी को standing at the सीट back, चाहिए तो 2 चेयर यहाँ पे हैं, आप आ hop in the सकते हैं. front. आप आगे आ सकते हैं. And we'll all open up our Bibles and we'll go to Psalms 55:22. और हम अपनी बाइबल से खोलेंगे और हम भजन संहिता उसके 55 और उसके 22 में जाएंगे. Are you guys ready for the word? क्या आप वचन के लिए तैयार हैं? Few people are like,
No, it has to be louder. Are you guys ready for the word? बहुत जोर से क्या बचने तैयार हैं? Okay, Psalms 55:22. वचन संहिता उसका 55 और उसका 22. You ready? See, in these days it has become very normal to have sleepless nights. और इस दिन आजकल ऐसा बहुत साधारण हो गया कि आपको नींद नहीं आती है. Very normal to have anxiety. बहुत साधारण हो गया कि आपको एंजाइटी हो या घबराहट Very हो. normal to see people having depression. कई बहुत नॉर्मल हो गया लोगों को डिप्रेशन होना. But this is the world's standard. पर ये दुनिया का एक मापदंड है. This is not the biblical standard. पर ये बाइबल के अनुसार का एक मापदंड नहीं है. Are you guys with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So don't adjust yourself according to the standard of the world. तो अपने आप को इस दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से एडजस्ट ना करें. Right? Adjust your life and live your life on the standard of the word of God. अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के मापदंड पे रखें. Now a lot of people are like, भैया we want to know the will of God. और आप में से कई लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को हम जानने चाहते हैं. भैया Everything God wants to speak to you is written in the word of God. हर एक चीज जो परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है उसके वचन में लिखा है. Okay, so read the word इसलिए वचन को पढ़ें so that it goes into your heart, ताकि वो आपके हृदय में जाए and then that word और वो वचन फिर will show you आपको दिखाएगा what is right, क्या सही है what is wrong. क्या गलत है. Okay, Jesus said to his और disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा you're not of the world. तुम इस दुनिया के नहीं हो. Tell your neighbor you're not of the world. अपने पड़ोसी से कहो कि तुम इस दुनिया के नहीं हो. Shake your neighbor's hand and say you're not of the world. अपने उससे हाथ मिलाएं और कहें तुम इस दुनिया के नहीं हो. You're not of the world. आप तुम इस दुनिया के नहीं हो. Now shake the neighbor's hand more and say you belong to Jesus. और अपने पड़ोसी के साथ और हाथ मिलाओ. And कहें then आप shake यीशु him पे- more and say now you live your life on the word of God. और आप कहें कि आप वचन यीशु के वचन पर अपने जीवन को चलते हैं. Amen. आमीन. So the world should not set the standard for my life. और दुनिया मेरे जीवन का मापदंड नहीं बन सकती है. I thank you, one person received it. Come on. The world should not set a standard for your life. संसार आपके जीवन का या दुनिया आपके जीवन का मापदंड नहीं बन सकती है. See, for the world, दुनिया के हिसाब से trying new things is fun. और नई चीजें ट्राई करना बहुत अरे मजेदार एक है. बार यार सिगरेट पी के तो देख बहुत मजा आता है. Try once having cigarette, you'll have fun. एक बार तो एक शॉट तो मार के देख. कभी नहीं मारा तूने, कभी नहीं मारा. एक बार मार के देख. अरे have one shot. तो बहुत मजा आएगा. You'll enjoy it. एक बार 120 पे गाड़ी चला के देख, बहुत मजा आएगा. Keep your bike speeds at 120 and you'll have fun. फिर फेफड़ा खराब होता है, किसी का हाथ ऐसे टंगा रहता है हॉस्पिटल में 150 चलाने के बाद, उसमें भी मजा आता है ना. And then when your lungs get destroyed and then you're fractured and on the hospital bed, then you have fun, right? देखो वर्ल्ड ने बहुत बार हमारा स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश किया है, And the world has tried to set our standard a lot of पर times. हमको अलाउ नहीं करना है. But we don't have to allow it. We don't have to allow it. हमें उसको अनुमति नहीं देना है. अगर वर्ल्ड कहता है एक बार ये ट्राई करके देख, आपको बोलना चाहिए एक बार यीशु को ट्राई करके देखो. And if the world says try this, you should tell the world try Jesus. Are you getting me? क्या आप समझ रहे हम हो? ना डरते हैं लोगों से, कैसे बोले. वो इतना अच्छे से ब्रांड कर रहा है वो दारू का बॉटल और तुम जीसस के बारे में नहीं बोल पा रहे हो. And he's branding that beer bottle so in a good way एक you बार cannot पी के even. देख, लाइफ का सारा टेंशन उतर जाएगा. And drink it once, all the tension of your life will बोलो be gone. एक बार यीशु को लेके देख, तेरे लाइफ का जिंदगी भर का टेंशन उतर जाएगा. Try Jesus once and your life will be transformed. समझ रहे हो आप? Are you understanding this? Right? You don't have to be afraid. आपको डरने की जरूरत नहीं है. Amen. Amen. You need to know that you have a God who stands with you. और आपको ये जानना जरूरी है कि आपके साथ जो परमेश्वर है वो आपके साथ खड़ा You're होता not है. alone. आप अकेले नहीं हो. You're never alone. आप कभी अकेले नहीं हो. So depression, anxiety, what the world is trying is not your standard. और ये डिप्रेशन, एंजाइटी और जो भी दुनिया में चल रहा है ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है. Your standard is the word of God. आपका मापदंड वचन है परमेश्वर का. Amen. आमीन. Yeah. You should receive the word, okay? आपको वचनों को ग्रहण करना है. I'll say it again. Your standard is the word of God. आपका मापदंड परमेश्वर का वचन है. Your standard is to live like Jesus. आपका मापदंड यीशु जैसा जीना है. Hallelujah. हालेलुया. Let's go to Psalms 55:22. I think you're there already. और आप भजन संहिता 55 के 22 में है. Are you there? सब हैं? Can you say yes? क्या कह सकते हैं? हाँ. Okay. Can we read it loudly? क्या हम जोर से उसको पढ़ सकते हैं एक साथ? 1 2 3 स्टार्ट. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा. Okay. The first part says, "Cast your burden on the Lord, and He shall sustain you, or He will take care of you." हिंदी में क्या लिखा है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, हाँ. वह तुझे संभालेगा. ठीक है. फर्स्ट पार्ट से पहले डील करते हैं. It has become common for people to live with burdens. और ये बहुत साधारण हो गया लोग की बोझ के साथ जी रहे हैं. EMI का burden,
The बोलो burden of EMI. Oh, in the English mix. हाँ EMI का बर्डन है The burden of EMI. 2 तारीख के पहले कई लोग ऐसे हो जाते हैं And before the second, you are like, कुछ तो करो प्रभु God, do something. कुछ तो करो God, do आपका something. दिल बर्डन है Your heart is burdened. क्योंकि मैं समझ रहा हूँ रात के 12 बजे के बाद कभी भी EMI कट जाएगा And because we understand that after 12, the money can be cut anyway. बच्चों के एग्जाम का बर्डन है You have burden for your kids' exams. एग्जाम बच्चे दे रहे हैं तबीयत मम्मी की खराब हो रही है The kids are giving exams. The mama is sick. वो फ्रीक आउट हो रही है अरे तूने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए ये कल ही तो पढ़ाए थे She's freaking out that you left 2 questions. हाँ बर्डन This is a burden. अभी MP नगर तक चर्च जाएंगे फिर रात में क्या खाएंगे बर्डन रात में आते आते दुकान 2-4 बंद हो जाती बर्डन हो गया And you go to MP Nagar church and then you're like, what will we eat at और आज night? तो रंग पंचमी है आज तो और लोग दुकान बंद हो गया अब क्या करें प्रभु Today's Rang Panchami, more shops will be closed. What will happen? कुछ बहनें लोग आज तो घर पे भी कुछ नहीं बनाया हमने We've not made anything at home as well. it has become so common for people to carry burden और ये बहुत साधारण लगा लोगों के लिए कि वो एक बोझ को लेके चलते so हैं. let me tell you this मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, don't carry burden अपने बोझ को ना चलने दे. Jesus died to set you free और यीशु मरा ताकि आप आजाद जियो. how many of you have seen a free person carrying more burdens और आप में से कितने लोगों ने एक आजाद व्यक्ति को बोझ लेते हुए देखा है? ऐसे किसी आदमी को देखा जो कह रहा है मैं आजाद हूं और उसके ऊपर 100 किलो वजन है Have you seen a man speaking out, I am free, and then you're seeing 100 kilos over him? नहीं ना No, right? ठीक है बाइबल कह रही है कास्ट करो बर्डन And the Bible tells अपना बोझ प्रभु पर डाल दो. डाल दो बोलो मेरे साथ डाल दो डाल दो. ठीक है एक बार और बोल दो डाल दो Cast it. हाँ कितने लोग कपड़े सुखाए कभी आप How many of you have dried your clothes? ठीक है आप भारी कपड़ा उठाते हो जो गीला है And you take out this heavy cloth that is wet, आपके हाथ में भारी है अभी and it is very heavy in your पर hand. पता है आप क्या करते हो Now what do you do? रस्सी पे डाल देते हो You just put it on the rope. अब क्या आपके हाथ में भारी लग रहा है Now do you have that heavy cloth on अभी you? कौन उठा रहा है Now who is handling that cloth? the rope is carrying the burden that you had few minutes back और वो जो रस्सी है वो उस भारीपन को लेके चल रही है जो आपका था. एंड आप में से हर एक को रस्सी पे भरोसा है And you trust the rope very well. क्योंकि कपड़े नीचे गिर गए तो फिर धोने पड़ेंगे ना If the clothes fall out, you'll have to wash वो it again. 50 रुपए की रस्सी पे आपको बहुत भरोसा है And you trust this 50 वो rupees 2 कील जो 2 रुपए की भी नहीं Ropes. आती उस पे भी आपको भरोसा है and these nails that you have put on the wall, you trust them. है ना हाउ मेनी ऑफ यू ट्रस्ट आप में से कितने लोग भरोसा करते हैं वो कील और रस्सी पे? थिंक अबाउट इट वी कैन ट्रस्ट गॉड मोर देन दैट ऐसा सोचिए हम परमेश्वर पे उससे ज्यादा भरोसा कर कास्ट सकते योर बर्डन ऑन टू गॉड हैं. आप परमेश्वर पे अपने बोझ को डाल डू सकते लाइक दिस मेरे साथ ऐसे करो ऐसे ऐसे अंदर से 2-4 गीले कपड़े उठाओ और उधर डाल दो and take out your wet clothes and put it on. एंड से गॉड आई एम कास्टिंग इट ऑन और यू कहें परमेश्वर अपने बोझ को डाल देता हूँ, कास्टिंग इट ऑन यू डाल देता हूँ परमेश्वर. व्हाटएवर इज वेइंग योर हार्ट डाउन टुनाइट जो भी आज आपके हृदय को दबा के रखा है, कास्ट इट ऑन जीसस यीशु पर डाल दो उसको. कास्ट इट ऑन जीसस यीशु पर डाल दो एंड आई एम उसको. टेलिंग यू ही विल सस्टेन और यू मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपको संभालेगा. Amen. See, if I tell Prince, go and give roses to everybody in the church, now I am free. और अगर मैं प्रिंस से कहता हूँ कि सारे रोज आके चर्च में दे दो तो मैं आजाद हूँ. है ना? Because who's doing it? कौन करेगा इसको? I just spoke the word. मैंने सिर्फ वचन बोला He's the one doing the action. और वो काम कर रहे हैं. And I am just talking to everybody because I am like, yeah, Prince will do it. और मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ प्रिंस कर लेगा. See, this is how you should be और ये आपको ऐसे होना चाहिए when you cast your burden on the Lord. जब आप परमेश्वर पे अपने बोझ को डालते You'll हो be like, oh, God will do it. और जानते हो परमेश्वर कर लेगा. अरे वो EMI अरे 2 के पहले मेरे अकाउंट में आएगा देख लेना. I will have EMI before the second. हाँ? I will have the money before the second of the EMI. समझ रहे हो आप लोग? That is how you need to live a life of freedom. ऐसे आपको जीना है एक आजादी का जीवन. See, Jesus didn't pay for a life where you are. आप घिस रहे हो जीवन वो जीवन के लिए यीशु ने दाम नहीं चुकाया. Jesus did not give a life where you're struggling and you're just crawling around in your कई life. लोग बोलते हैं ना भाई चप्पल घिस गई दुनिया में आके. And some people say that my shoes have been worn out in this अरे world. आपको चप्पल घिसने के लिए नहीं बुलाया है. I have not been called to crawl on this world. समझ रहे हो आप? Are you understanding this? आपके लिए यीशु मसीह ने जब दाम चुकाया आपके बर्डन्स का भी दाम चुका दिया ताकि आप अपना जीवन इस पृथ्वी पर एंजॉय कर And सकें. when Jesus paid the price for you on the cross, he also paid a price for your burdens so that you can live a life of freedom. अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोलता You है. know what the second यहाँ part तक says? कितने लोग समझ पाए थे मेरे साथ? How many of you समझ पाए थे आप लोग? have understood this? ओके सेकंड पार्ट क्या बोलता है? What does the second part Yeah. say? वो धर्मी को कभी टलने ना देगा. है इंग्लिश बाइबल में पढ़ो कोई एक बारी मेरे लिए. रीड इट इन द इंग्लिश बाइबल. एनीवन. द सेकंड पार्ट. He shall never suffer the righteous to be moved. Okay.
He shall never suffer the righteous to be moved. Anybody having a newer translation? कोई नया? Not permit the godly to slip and fall. To slip and fall. और कोई translation? Righteous to be shaken. Righteous to be shaken. ये क्या है ये? NIV है? NIV है? Okay. ठीक है. सारे सबको मैं एक साथ ले आता हूँ. ठीक है? मोक्ष भाई आ जाओ इधर. Amplified and slip fall. ठीक है? चलो सबको जोड़ देते हैं. चलो. Ultimately meaning एक ही है. मोक्ष भाई stand here on the top. रूफस आ लो. जेरी भाई आप भी आ जाओ. ठीक है. नितेश का है? नितेश भी आ जाओ. एक दो लोग और चाहिए, देखते हैं अभी. Volunteers. ठीक है. क्या कह रहा है? ऊपर चढ़ो, ऊपर अच्छा लगेगा तुम लोग को, ऊपर से देखो चर्च. मोक्ष भाई इधर खड़े हो बीच में. ठीक है. अभी जेरी भाई इनको पकड़ो, आप इधर से इनको पकड़ो. हाँ रूफस भाई आप 2 मिनट साइड हो, इस साइड से पकड़ो, इस साइड से. ठीक है. वचन कह रहा है कि धर्मी जन को, यानी कि इसको परमेश्वर गिरने नहीं देगा, दूसरा स्लिप नहीं होने देगा, तीसरा शेक भी नहीं होने देगा. ट्रांसलेट. And then the Bible is telling that this righteous man, the Lord is not going to let him slip or fail or fall है ना? or be shaken. How many of you are righteous? आप में से कितने लोग धर्मी हैं? You sure of that, right? आपको पता है ना ये? You're a righteous man, आप धर्मी हो righteous woman of God. और आप धर्मी व्यक्ति हो. The point is, God said, I will not let him be shaken. और बात यह है कि परमेश्वर के वचन ने कहा कि मैं इसको टलने नहीं दूंगा. मेरे साथ बोलो, परमेश्वर कह रहा है, बोलो बोलो, परमेश्वर कह रहा है, मैं इस धर्मी जन को हिलने नहीं दूंगा. हिलने नहीं दूंगा. ठीक है. अब समझना मेरे साथ, जब तक ये सोच रहा है कि मैं अकेला हूं, And until he's thinking that I'm alone, इसको परिस्थितियां हिलाएंगी. हिलाओ. the situation अरे will अच्छे shake से him. हिलाओ, क्या घबरा रहे हो तुम लोग? उसको कुछ नहीं होगा. क्योंकि पता है इसको पता ही नहीं है ये वचन कि परमेश्वर ने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया है. Because he does not know the word that God has promised me ठीक something. है. अभी आप दोनों पकड़े रहना. ठीक है. विनय भैया आप भी आ जाओ, होशे आप भी आ जाओ. ठीक है. आप दोनों थोड़ा दूर हो जाओ, वापस दूर से हिलाना, पर इनका हाथ पकड़े रहना. ठीक है. पकड़े रहना. ठीक है. आप इनके पैर पकड़ लो. विनय भैया आप इधर आ जाओ. ठीक है. जेरी भाई विनय भाई का हाथ पकड़ो, आप इस तरफ आओ. अरे दोनों पैर पकड़ो ना अच्छे से बेटा. हंस रहे हो. हाँ, इसका हाथ पकड़ो आप. इसका हाथ पकड़ो. ठीक है. अब देखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने राइचस को घेर रखा है. And the Father, the Son and the Holy Spirit are surrounding the Are you righteous. understanding me? क्या आप समझ रहे हो? He is surrounded by God. वो परमेश्वर से घिरा हुआ है. ये गॉड ने प्रॉमिस किया, And this God promised, तू नहीं हिलेगा. you will not be shaken. अब इन दोनों को हिलाओ आप. ये देखो, ये तो खड़ा ही हुआ है. आप खड़े रहो बेटा, आपको नहीं हिलाना, आप दोनों हिलाते जाओ. आप देख रहे हो, अभी परिस्थिति इसके पास पहुंच ही नहीं पा रही क्योंकि ये सराउंडेड है. The situations cannot touch him because he is surrounded. कितने लोग समझ पा रहे हो? Are you understanding this? हाँ, थैंक यू सो मच यार. बिग टीम, कम ऑन, एक ताली बजा दो इन लोग के लिए. बोलो, परमेश्वर मुझे हिलने नहीं देगा. And say God will not ये let उसका me be वादा है. shaken. This is his promise. हाँ, इंग्लिश में बोलो एक बार. God will never let me be shaken. Because this is his promise. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? हाँ, get this promise into your heart. ये अपने इस वायदे को अपने हृदय में ले लें. Right? There are two things in the Bible. बाइबल में 2 चीजें हैं. There are some things that open up by obedience. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज्ञा मानने से खुलती हैं. आप आज्ञा मानोगे, आशीष खुलेगी. And you obey and you will see the blessing being opened. पर बाइबल में कुछ वाचाएं भी हैं. And there are some covenants in the Bible. Promises भी है There are some promises in the Bible जो ऑटोमेटिकली होते हैं that automatically happen जब आप भरोसा करते हो. when you trust him. समझ पा रहे हो? Are you understanding this? अगर मुझे प्रिंस भाई ने आके बोला कि मैं आपको कॉफी पिलाऊंगा, मुझे भरोसा है मेरा बिल कौन पे करेगा? And if Prince Bhai said that I'm gonna give you a coffee, whom did I trust with the coffee? इसका वादा पूरा करने वाला कौन है? And who is the one who is gonna fulfill the promise? यही है ना. I am. परमेश्वर का वादा पूरा करने वाला कौन है? And if God has given you a promise, who will fulfill that आपका promise? क्या पार्ट है? What is your part? बस प्रभु की ओर लगे रहो. Just trust God. प्रभु तू करेगा. You will do it. You know, विश्वासी कब हारने लगता है? You know when does a believer lose? जब उसको लगता है मैं अपना जंग लड़ रहा हूँ. When he thinks that I am fighting my own battle. शैतान आजा, अभी मैं तेरे को बताता है. Shaitan, come, I will teach you a lesson. हैं? जब आप अपना युद्ध लड़ने लगते हो, समझ जाना आप गलत जगह चले गए हो. वापस आओ और बोलो,
तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। समझ रहे हो आप? And then when you're surrounded by all these things, करो God ट्रांसलेट। reminds you that He is all around you and you can never run from His presence. हालेलुया। Hallelujah. Are you guys learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Are you guys learning क्या आप something? कुछ सीख रहे हो? Keep a hand on your heart अपने हृदय पर अपने हाथ को रखें and tell yourself, I'm surrounded by the Father, the Son and the Holy Spirit. और अपने आप से कहें कि मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से घिरा हुआ हूँ। Come on, louder. I'm not alone. मैं अकेला नहीं हूँ, God is with me परमेश्वर मेरे साथ है, and He will take care of me. वो मेरा ख्याल रखेगा, He will not allow me to slip. वो मेरे को फिसलने नहीं देगा, He will not allow me to fall. वो मेरे को गिरने नहीं देगा। I will rise up higher मैं ऊंचा जाऊंगा and higher और ऊंचा जाऊंगा and keep flying with और Jesus यीशु के साथ उड़ता रहूंगा, because His promise is true. क्योंकि उसका वायदा सच्चा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आकाश में चढ़ूं तो, तू वहाँ हाँ जोर से, अधलोक में जाऊं तो, तू वहाँ है, ओ आकाश में चढ़ूं तो, तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो, तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे एक साथ, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। पानी पर चलूं, एक साथ कम ऑन, पानी पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है, पानी पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान से घिरूं तो। कम ऑन, अपने कॉन्फिडेंस को आने दो प्रभु के ऊपर जब आप गाना गा रहे हो, ठीक है? मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, ऐसे गाओ जैसे आपका बल वहां आ रहा है। and sing as if your strength is coming right now. तूने मुझे आगे पीछे, कमान एक साथ मिलकर, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों पे चलूं तो, कम ऑन जोर से, तूफान से। अगर आपको नाचना है, ताली बजानी है, अपने आप को उसकी प्रॉमिस पर लेकर आओ। and if you want to dance, जब आप but गा रहे bring हो, yourself on the promise of God. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग। कम ऑन, अपने हृदय को उसकी प्रॉमिस पर लेकर आओ। थैंक यू जीसस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे, कम ऑन, अपना हाथ मुझ पर, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। तूफान से घिरूं तो तू, अग्नि में चलूं तो तू
तूफान से गिरूं तो तू वहां है, अग्नि में चलूं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग जाए मैं कहाँ कम ऑन जोर से कहेंगे यहोवा, यहोवा मेरा बादशाह। कम ऑन जोर से करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। एक बार और जोर से यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह। वो करता भला, वो करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों के साथ। उसका है अलग अंदाज, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। हे यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। आप पता है क्या गा रहे हो? मैं आपको बताऊं आप क्या गा रहे You हो? know what you're singing? आप कह रहे हो केवल भलाई ही मेरे जीवन में होगी, शत्रु का कोई काम मेरे विरोध में नहीं आएगा, लेकिन यहोवा की भलाई मेरे जीवन को भर देगी। And you're singing that the goodness of God will only come in my life. No plans of the enemy is ever going to prosper in my life. Only goodness is what I'm going to see. दानियल के समय में राजा ने सोचा कि शेरों की मांग में जाएगा तो शायद बच के नहीं आएगा, यहोवा की भलाई आ गई और शेर चुप हो गए। And in the times of Daniel, people thought that he'll go into the lion's den and he will not come out alive. But the goodness of the Lord covered Daniel. राजा ने सोचा शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग में डाल देंगे, यहोवा की भलाई वहां पे भी आ गई, आग में डांस करने लग गए। And the people thought that we'll put Shadrach, Meshach and Abednego in the fire. But the goodness of the Lord came in and they were dancing मैं in the आज fire. आपके ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूँ, इस मार्च के महीने में उसकी भलाई आपके जीवन को घेरेगी और आपके जीवन को भर देगी। And I'm declaring for you in this month of March that His goodness is going to cover you and you're going to follow. It's going to follow you. जैसे इस महीने का एक फाइनल टर्नओवर होता है, आप इस महीने को क्रॉस ओवर नहीं करोगे जब तक भलाई आप देख ना लोगे। And until this, just like in this month, there's a financial turnover. You will not cross over until you see the goodness of the Lord in this month. मार्च का महीना पुराने साल को क्लोज करने का होता है और फाइनेंशियली नया ईयर बिगिन करने का होता In है। the month of March, there's a financial closing, and in the month of April, there's a new मैं कह रहा financial हूँ year. आत्मा में आप पुराना क्लोज कर रहे हो और भलाई से शुरुआत कर रहे And हो। I'm telling in the spirit, you're closing financial year of this month, and in the spiritual realm, you're opening a new financial realm. पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले जाते दुखी आराम। पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले जाते दुखी आराम। सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधन से भी आजाद। सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधन से। उसका प्यार है महान, उसका प्यार है महान, वो है मेरा चौपान। उसका प्यार है महान, वो है मेरा, रहता है वो साथ सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। एक और बार, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला। नच नच के नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मना, क्योंकि वो भला है। नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे। कमान मैं चाहता हूं अपने दोनों हाथों को उठाओ।
I want और to कुछ lift up your देर hands. चिल्लाकर धन्यवाद दो कि सदा भला होगा, And सदा shout, भला होगा, and मेरे shout. लिए सदा भला होगा. Shout that He is good. He is good. He is good. Don't let anything stop you to believe that he is good. और कुछ भी चीज आपको नहीं रोक सकती है विश्वास करने से कि वो भला है. Come on, come on, come on. जोर से कुछ देर और. 30 seconds. Keep Just for 30 shouting. seconds. Keep चिल्लाते रहो. shouting his name. Yeah. 30 seconds. You're a good God. You're a good God. I will see your goodness in Bhopal city. I will see your goodness in my family. I will see your goodness in my life every day, every day, every day, every day. Pura basa katara la bahiyataka. Re rianta la la ba. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Oh, तू भला है. You are good. तू भला है. You are good. मेरी सोच से ज्यादा तू भला है. Beyond my thinking, you are good. Jesus, you're good. यीशु तू भला है. Jesus, you're good. यीशु तू भला है. Jesus, you're यीशु तू good. भला है. And your mercy endureth और forever. तेरी दया सदा के लिए है. Every morning when I wake up, हर सुबह जब मैं उठता हूँ I will see new mercies of the मैं Lord. परमेश्वर की नई दया को देखूंगा. Come on, ragada करुणा को देखूंगा. Come on, pray in the spirit for 1 minute. Pray in the अन्य spirit. भाषा में कुछ देर प्रार्थना 1 करें. minute, pray in the spirit. शादाला. Don't worry about your neighbor, just pray in the spirit. अपने पड़ोसी की तरफ ध्यान मत दे, आत्मा में प्रार्थना करना चालू करें. Rigadala baba baga chante lege re de de. Rigada sianta la brala la bada la masiente. Radala masianta la bada la masiente ke. Ragada la bragada la ma. Come on, come on, keep going, keep pressing on in the spirit. और आत्मा में और जाते जाएं. Siata la bragada la baba. Rakata sere de le bregede de le rebrede de rianta. Rigada la bragada la ramana masianta la bragada la ba. Rianta la gada la baragada sekete de bede de. Rigada la mana mama gada na mahate. Lord, I thank you for your goodness is reaching out. Reaching out. धन्यवाद कि तेरी भलाई खुल रही है अभी. Angels are opening streams of your goodness to flow. और स्वर्गदूत महिमा को खोल रहे हैं. महिमा Because your word, क्योंकि आपका वचन, your promise is making a way. आपका वायदा रास्ता बना रहा है. Rikatala masiente. We thank you, Abba. धन्यवाद अब्बा. We thank you, Abba. धन्यवाद अब्बा. In Jesus' name. यीशु के नाम से. And everybody say, और हर एक जन कहे Amen. Amen. You can all be seated. आप सब बैठ सकते हैं. We'll go to the book of Timothy, 2 Timothy, और हम दूसरे तिमोथी जाएंगे. chapter 1. पहला अध्याय. 2 Timothy, chapter 1. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय. Are you guys ready for the word? क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? Oh, this was just starters, I'm telling और you. ये सिर्फ शुरुआत थी. There's a full meal for you tonight. आपके लिए एक पूरा मील है. There's a full meal. पूरा मील है. You ready? 2 Timothy, chapter 1, verse 7. दूसरा तिमोथी उसका 1 और उसका 7. It says, the Lord has not given us the spirit of fear. और वो कैसा कहता है कि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है. But it says power, वो कहता है सामर्थ, but the spirit of power, पर सामर्थ की आत्मा, love, प्रेम की आत्मा and sound mind. और शांत मन की आत्मा. Okay? Can you all see that in your Bible? मेरे साथ बोलिए, हम मुझे डर का आत्मा नहीं मिला. एक बार और, मुझे परमेश्वर से डर का आत्मा नहीं मिला. है ना? अब सुनो, आप जब भी आपको लगे अपने हृदय में आपको डर महसूस हो, जान लेना प्रभु की ओर से नहीं आ रहा है. And whenever you feel fear inside your heart, remember this is not from God. हैं? लोगों को देख के डर लग रहा है, You're fearing people, परिस्थिति को देख के डर लग रहा है. you're fearing the situations in your life. हाँ, जान लेना प्रभु की ओर से नहीं है. Know that this is not from God. क्योंकि प्रभु ने बहुत क्लियरली बोला है, Because God clearly said, मैंने डर का आत्मा नहीं दिया I है. have not given you the spirit of fear. फिर कौन सा आत्मा दिया So है? which spirit? नंबर 1, पावर. First, सामर्थ, मेरे साथ बोलो, सामर्थ. power. है ना? दूसरा प्रेम. Second, love. हिंदी में ना संयम लिखा है, पर वो करेक्ट वर्ड नहीं है एक्चुअली. संयम पेशेंस होता है. इट्स साउंड माइंड. वो है शांत मन. क्या है ना? साउंड माइंड. शांत मन. You know, what do you mean by sound mind? और शांत मन का मतलब क्या है? So many times when you're thinking, your mind is going in 10 different directions and you're just thinking. और कई बार जब आप सोच रहे हो, आपका दिमाग ना 10 चीजों के बारे में सोचता है और आप बस सोचते ही रह जाते हो.
But the moment you fix your gaze on the Holy पर Spirit, जैसे ही आप अपने नजर को पवित्र आत्मा की ओर लगाते हो the Holy Spirit settles every thought. और पवित्र आत्मा सारे विचारों को शांत करता है, He settles your heart, आपके हृदय को शांत करता है gives you peace. और आपको शांति देता है. क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? What does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा डराता नहीं है. He does not scare you. समझ रहे हो आप? पवित्र आत्मा डराता नहीं है The हमें. Holy Spirit does not scare you. हाँ, कुछ लोग डरते हैं पवित्र A आत्मा. lot of people are afraid of the Holy Spirit. हाँ, हो सकता है आपने किसी को एकदम बहुत तेज तेज चीखते हुए देखा होगा तो आप डर गए, वो हो सकता है. And you might have seen someone shouting and then you might have been afraid. बट वो केवल चिल्लाना पवित्र आत्मा नहीं है. वो पवित्र आत्मा तो केवल आया है, अब उस व्यक्ति में जीना शुरू करेगा. But that shouting is not the Holy Spirit. The Holy Spirit has just come on that person and he'll now start living from that place. है ना? मेरे साथ बोलो, मेरे अंदर Speak it with me. परमेश्वर का आत्मा, सामर्थ और शांत मन खोल रहा है. मैं इसे रिसीव करता हूं. ठीक है? पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आयत मैं क्यों लेकर आया हूं? मुझे बार बार आज कार चलाते समय पवित्र आत्मा कह रहा था, बहुत सारे लोग हैं जिनको डर लगता है. और पता है आपको काहे से डर लगता है? जब आप कार चला रहे हो आपको ऐसा लगता है मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा. And I was just coming by car and I heard the Holy Spirit saying that there are a lot of people who fear, even like when you're driving, you feel like accidents will happen. आपको डर लगता है आपके बच्चों को कुछ अचानक हो जाएगा. And you fear that something suddenly will happen to your kids. और आपको कई बार ऐसा भी लगता है मेरे को कोई बीमारी हो जाएगी. And sometimes you think I will suddenly have a sickness. मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, What if I die? या कोई आके मुझे चाकू मार देगा. Someone would stab me. या थॉट्स आते हैं आपको. These are thoughts in your किसके head. साथ ऐसा होता है? Can you How just many, stand up? Because I how want to many pray of for you. you go through this or have these thoughts inside your heart? This is demonic, okay? Just अपने जगह खड़े हो जाओ. आप प्रार्थना सब करें खड़े हो आप. सकते हैं. ठीक है? You can all आप stand. सब नहीं, जिनको ये लगता है कि उनके साथ ये हो रहा है, केवल मैं उन लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Those who feel like you go through this, you can stand. Those who And feel because their of heart this is there is with- constant fear in your heart. इसके कारण आपके दिल के अंदर ना लगातार डर बैठा बार-बार रहता डर. है. मैं फेल हो गया तो क्या? What if I fail? मैं कुछ लाइफ में कर नहीं पाया तो क्या? What if I am not able to do something in my life? ये प्रभु की ओर से नहीं है. This is not from God. ये प्रभु की ओर से नहीं है. This is not from God. परमेश्वर चाहता है आप शांत मन में जियो, इस वाचा को जान के कि वो आपको स्लिप नहीं होने देगा, टलने नहीं देगा. And God wants you to live in a sound mind, knowing that He will never let you Come fall. on, जो लोग इनके आसपास बैठे हैं मैं चाहता हूं अपने हाथों को बढ़ाएं. अगर आप उनको छू सकते हैं तो छुएं उनको. And if you can touch them, I want you to touch them and just Come on, reach अपने out your हाथों को hands to रखें. them. हाँ, भाई भाई के ऊपर हाथ रखे, बहन बहन के ऊपर हाथ And रखे. brothers on brothers, sisters on sisters. Come on, जल्दी. Can some of my team members come to these people? Where's Muskan? Muskan, you're there. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पिता यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्टात्मा का कार्य, इस फोरबोर्डिंग स्पिरिट का काम जो लोगों को डर में रूटेड कर रहा है, आज उसके काम को मैं सीज होने के लिए बोलता हूं. And in the name of Jesus, the spirit of foreboding that is causing them fear, I seize it in the name of Jesus. I don't know, there's somebody here who has a fear that you will die by sickness. और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि किसी को यहाँ पे डर है कि आप बीमारी से मरोगे. एक स्पेसिफिक बीमारी से आप मर जाओगे. You have this fear. You have this fear that you will die of this certain sickness. This is not from the Lord. Don't receive it. ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, इसको ग्रहण मत करें. The Lord's will is not for you to die in sickness. परमेश्वर की इच्छा आपके लिए नहीं कि आप बीमारी से मरो. The Lord's will for you is that you live a long life. और परमेश्वर आपकी इच्छा आपके लिए है कि आप एक लंबा जीवन जियो. As a church, come on, मैं चाहता हूं अब आप जोर से बोलो, ये काम आज से इनके जीवन पे रुक जाए. और कलीसिया में आते speak it. Let this work stop in the name of और अब Jesus. बोलो दूसरा तिमोथी 1:7 के अनुसार And according to 2 Timothy 1:7, शांत मन हम इनके ऊपर खोल we देते हैं. release the sound mind of God over पूरी them. कलीसिया मिलकर With the whole church, speak it. शांत मन खोल देते हैं. Speak it. We give them sound mind. शांत मन खोल देते हैं. We open up sound mind for प्रभु का them. सामर्थ खोल देते हैं. We open up the power of God over their ये lives. जानते हुए Knowing कि आज के बाद that from now ये on, डर में नहीं they जिएंगे. will not live in fear, ये सामर्थ, प्रेम और सिद्ध मन में जिएंगे. but they will live in Oh. power and love and in sound mind. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Thank you, Father. Wow, thank you, Father. इस गीत को मैं आपके ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूं.
अब मैं खौफ का गुलाम नहीं, मैं खुदा का बेटा हूँ. I'm no longer, and I'm no longer a slave to fear. I am the child. I am the child of God. अब मैं खौफ का, come on एक और बार. अब मैं खौफ का गुलाम नहीं, मैं खुदा का बेटा हूँ. माँ के गर्भ से मुझे चुन लिया, प्यार पुकारा मेरा नाम, नया जन्म हुआ कुंबे में तेरे, तेरा लहू रगों में मेरे. अब मैं खौफ का गुलाम. Come on, जितने लोग खड़े हैं, स्पेशली अपने आप के ऊपर अब डिक्लेयर करो आप. Those who are standing, I want to declare it over your life. Declare this song over yourself. और ये गाना अपने ऊपर घोषणा करें. No more under the slavery of fear. अब आप डर की गुलामी में नहीं हो. You are a fearless child of और God. आप परमेश्वर के एक निडर बच्चे Full हो. of confidence. पूरे कॉन्फिडेंस से, Full of boldness. पूरे हियाव के साथ. अब मैं और, come on, अब मैं खौफ का, अब मैं खौफ का गुलाम नहीं, मैं खुदा का बेटा हूँ. Father, I thank you because we are all children of God in your house. और पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम सब तेरे बच्चे हैं. And from tonight, और आज से none of those who are standing will live in fear. और आज से जो भी यहाँ पे खड़े हैं वो कभी डर में अब But नहीं they will जिएंगे. live in the confidence of God. पर वो परमेश्वर के कॉन्फिडेंस में जिएंगे. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Can we all clap for the Lord? Come तो on. हम क्यों ना परमेश्वर के लिए इस ताली बजाएं. Isn't the Lord doing something in the church? परमेश्वर इस कलीसिया में कुछ कर रहा है. How many of you believe that the Lord is doing something आप tonight? में से कितने लोग विश्वास करेंगे परमेश्वर आज कुछ कर रहा है. Right? So clap for Jesus, okay? यीशु के लिए ताली बजाएं. Come on, clap for Jesus. Because He's doing something tonight. वो आज कुछ कर रहा है. And I just love when Jesus does something. और मैं बहुत अच्छा लगता है मेरे को. मैं बहुत प्यार करता हूँ जब यीशु कुछ करता है. Amen. आमेन. You can be seated. आप सब बैठ सकते हैं. We're going to go to the book of John, हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे. chapter 16. उसका 16. Are you guys ready? तैयार हैं आप? This is gonna be meat and bones and some sweets. और ये मटन और For the मिठाई. vegetarians, this is paneer. जो वेजिटेरियन आपके लिए पनीर रहेगा ये. I'm going to teach about the Holy Spirit, which I have promised for the whole month, okay? Come on. और हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे जो मैंने आपको वायदा किया था. Amen. So last Sunday I already started with it, और लास्ट संडे हमने इस पे पहले से चालू कर दिया and था. I'm going to take it forward. मैं इसको अब और आगे लेके So जाऊंगा. are you all in John 16? क्या आप सब यूहन्ना उसके 16 में हैं? हाँ, सब लोग हैं? Are you all there? 16 का मैं चाहता हूँ आप 7 वचन पे आ जाएं. I want you to come to 16:7. ठीक है? तैयार हैं आप प्रिंस भाई के साथ पढ़ने के लिए? 7 से लेकर हम 13 या 14 तक जाएंगे, ठीक है? और हम जोर से इसको पढ़ने जा रहे हैं. And from 16 we're going to go to 13 or 14. Yeah. And we're going to read it together out loud. चलो, रेडी? 1 2 3 गो. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर संसार का पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे. न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है.
मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातें में से लेकर तुम्हें बताएगा। परफेक्ट। मैं चाहता हूं आप वो वाली आयत पे आ जाओ जहां लिखा है पाप के विषय में, ठीक है, धार्मिकता के विषय में, which is that scripture? Ninth. और 10। So we're going to read 9th, scripture number 9 together and then scripture number 10 together. Are you ready? And this time I want you to be more louder, okay? इस बार मैं चाहता हूं अभी और जोर से बोलें, ठीक है? तैयार? 1 2 3 लेट्स गो। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। हाँ ओके। अब देखो आप, एक और स्क्रिप्चर होगा जिसमें जजमेंट भी कंप्लीट कर रहा है, वो भी पढ़ दो। हम 12 8 या हाँ 8 हम पढ़ेंगे एक साथ मिलके। तैयार हैं? 1 2 3 लेट्स गो। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखो आप कह रहे हैं पाप, राइचियसनेस और जजमेंट, ठीक है? कम ऑन, सिन, राइचियसनेस एंड जजमेंट। पाप और धार्मिकता और न्याय, ठीक है? मेरे साथ बोलिए, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट जब भी आता है, whenever he comes एक व्यक्ति के जीवन में, in a person's life, ये 3 काम शुरुआत करता है, these 3 things he begins। ठीक है? Are you all understanding this? क्या आप सब कुछ समझ रहे हैं? Now, पाप के विषय में क्यों कन्विक्ट करता है पवित्र Why आत्मा? does he convict of the sin? एक वर्ड इंग्लिश बाइबल में आया होगा, कन्विक्ट, कायल करता है। हिंदी बाइबल में आया है क्या ये वर्ड? नहीं आया ना? इंग्लिश बाइबल में आया था, ही कन्विक्ट्स यू ऑफ सिन। और वो आपको पाप के लिए कायल करता है। ओके। नाउ व्हाई डज द होली स्पिरिट कन्विक्ट अ पर्सन? और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को कायल क्यों करता है? व्हेन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन अ पर्सन, और जब एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आता है, इट डज नॉट स्टार्ट विद टंग्स। वो अन्य भाषा से चालू नहीं A होता। lot of people think because I have tongues I have the Holy Spirit. और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि मेरे पास अन्य भाषा है, मेरे पास पवित्र आत्मा है। No. नहीं 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 नहीं। The first thing the Holy Spirit does in a believer's life is he convicts them of their sin. और पहली चीज जो पवित्र आत्मा करता है एक विश्वासी के जीवन में, Because those people don't believe in Jesus. वो उनके पापों के बारे में उनको ना कायल करता है। So क्योंकि when वो- Holy Spirit comes, तो जब वो लोग यीशु पे विश्वास नहीं करते, he जब will पवित्र आत्मा convict आता you है, of your sin, वो आपको पाप के लिए कायल करेगा, and then you will go in your heart, और फिर आप अपने हृदय में सोचोगे, I want Jesus. मेरे को यीशु चाहिए। ये पता है कौन कर रहा है आपके अंदर? And you know who is doing this in your life? पवित्र आत्मा। The Holy Spirit. मेरा मैसेज नहीं कर रहा है। My message is not doing this. मेरे मैसेज का जो शब्द है वो भी जब पवित्र आत्मा लेके आपके हृदय में कन्विक्शन लाता है ना, तभी आप रोने लगते हो। And when you hear my message and you have tears in your eyes and you start crying, this is the Holy Spirit. मैं बहुत पाप में जीवन जी रहा था एक समय, I was living a sinful life, एकदम बहुत ही अच्छा वाला, गंदा वाला, पाप वाला जीवन। high grade sinner. हाँ? And one day I felt like I don't want to sin. और एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को पाप नहीं करना है। आप सोच के देखो, 10 साल पाप एंजॉय कर रहा हूँ, And Pastor Joshua was enjoying sin for past 10 years. ऑटोमेटिकली one day I'm like I don't want to sin. And then एकदम से उनको लगता है कि अब मेरे को पाप नहीं करना है। किसने डाला? Who put this? पवित्र आत्मा। Holy Spirit. उस दिन मुझे टंग्स नहीं मिला, लिटरली बता रहा हूँ, That day I did not receive the tongues. बट मेरे अंदर एक थॉट आया, अगर मैं यीशु को पा लूंगा तो मैं पाप के ऊपर जीने लग जाऊंगा, और ये थॉट पवित्र आत्मा डालता है। But one day, that day I had this thought that if I receive Jesus, I will be victorious over sin. And this thought is this thought giver is the Holy Spirit. कितने लोग समझ पा रहे Are हैं? you understanding this? हाँ, अगर आपके हृदय में पवित्र आत्मा डाल रहा है कभी भी कि ये पाप मत करना या अपने पाप से तौबा करो, ये एक्चुअली पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, उसको इग्नोर मत करना। And whenever you feel like you shouldn't, whenever you feel a voice that is coming inside of you that you should not do this sin, or you should convict or ask repentance or ask forgiveness of the sin, remember, do not ignore the voice because this is the Holy Spirit. सेकेंड थिंग इज दूसरी चीज है राइचियसनेस। धार्मिकता। मेरे साथ बोलो धार्मिकता। Righteousness. हाँ, जोर से बोलो धार्मिकता। Say it out loud. Righteousness. ठीक है, धार्मिकता का मतलब है Righteousness means राइट स्टैंडिंग विद गॉड, ओके, एंड विद मैन।
परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ सही स्थान में रहना. यीशु ने बोला कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, And Jesus said, I'm going to heaven. मैं उठा लिया जाऊंगा I will ascend. और तुम्हें धार्मिकता में जीना पड़ेगा तब भी. And you have to live in righteousness. तो पता है मैं ये जिम्मेदारी किसको दे रहा हूं? And you know whom I'm giving this responsibility to? पवित्र आत्मा. The Holy Spirit. पवित्र आत्मा The Holy Spirit इस पृथ्वी पर in this world तुम्हें जीना सिखाएगा. will teach you how to live, प्रभु के साथ कैसे जीना है, how to live with God, मनुष्यों के साथ कैसे and जीना how है. to live right with man. हालेलुया. Hallelujah. Okay, I know I am going fast, but I am telling you, if you just catch this word, your spirit is going to understand this in this coming week. और मैं जानता हूँ कि हम लोग बहुत तेज आ रहे हैं, पर अगर आपकी आत्मा इस वचन को पकड़ है लेगी. ना? आप में से कितने लोग यीशु मसीह को आप ऑलरेडी समझ रहे ग्रहण कर चुके हैं? How many of you have accepted Jesus in your life? कर चुके हैं. तो आप ये फर्स्ट वाला स्टेज क्लियर कर चुके हैं. Now you've cleared out the first stage. आप यहाँ पर हैं. You are here. ठीक है. Okay. पता है इस दुनिया के अंदर You know, in this world, बार बार हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं. there are options in our life. ठीक है. ये कर लेता हूं तो ऐसा हो जाएगा, And if we do this will happen. ये कर लेता हूं तो ऐसा हो जाएगा. If we do this will happen. है ना? ऑप्शन आते हैं. You've got options, right? पवित्र आत्मा के साथ अगर चेक करोगे, And if you check it with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए जिससे तू परमेश्वर के साथ सही जीवन जिए और लोगों के साथ सही जीवन and the जिए. Holy Spirit will tell you what should you do so that you can live right with God जब- and right with man. जब आपको कोई धोखा दे, And when somebody आपको कोई- actually betrays you, इरिटेट करे, somebody irritates you, आपका हार्ट बोले अरे जा आज तो कर ले तू, and your heart will speak, no, go fight now. आज तो एकदम हिसाब क्लियर कर ले. Let's settle the accounts. हाँ, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा. And the Holy Spirit will remind you. The Bible says, बाइबल ये कहती है, forgive and you will be forgiven. माफ करो तुम्हें भी माफ किया जाएगा. Show mercy and you will be shown mercy. उनको दया दो और तुम्हें भी दया दिखाई जाएगी. He will, flesh will always lead you to fight. और हमेशा आपका शरीर आपको लड़ने के लिए लेके जाएगा. Holy Spirit through the righteousness of God will help you live a righteous life on earth. और पवित्र आत्मा के द्वारा, उस धार्मिकता के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलती है, वो आपकी मदद करेगा ताकि आप इस पृथ्वी पर धार्मिक जीवन जियो. A lot of people come to me and tell me, भैया I want to live a righteous life. और कई लोग मेरे से आके कहते हैं कि ब्रदर भैया मैं एक धार्मिकता का जीवन जीना Can you चाहता show me a greater way? हूं. क्या मेरे को एक अच्छा तरीका Yeah, दिखा I am सकते showing हो? you the greatest way. और मैं आपको सबसे अच्छा तरीका Depend दिखा on रहा the हूं. Holy Spirit पवित्र आत्मा पे निर्भर करो, and hear His voice. उसकी आवाज को सुनो. I am telling you, He will not let you fail. और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कभी भी नाकाम नहीं होने देगा. You will keep walking in righteousness. और आप राइचियसनेस में, धार्मिकता में चलते You रहोगे. will keep walking in righteousness आप धार्मिकता में चलते रहोगे and you will not slip in sin. और आप पाप में कभी स्लिप नहीं होगे. Okay, are you understanding क्या आप this? समझ रहे हो इसको? I can't hear any of you. Are you understanding this? क्या आप समझ पा रहे हो? One of the times I had a fight with my uncle. और एक समय मेरे अंकल से मेरी लड़ाई हुई, It was a good fight. अच्छी तगड़ी लड़ाई. He also shouted on me, and in the end, I forgot everything, and I also shouted on him. और उनने मेरे पे चिल्लाया और अंत में हम दोनों ने चिल्लाया, सब कुछ हम भूल गए. No, I also shouted on him. और मैंने भी चिल्लाया. I forgot I was younger. और मैं भूल गया था कि मैं He उनसे was छोटा हूं. 25 years elder to मेरे से me. 20 से 25 साल बड़े I हैं. was so frustrated पर मैं बहुत चिढ़ गया था with what he did, जो उनने किया उस पे, and I shouted on him. और मैं चिल्लाया उन पे. I came to Bhopal, मैं वापस भोपाल आया, sat in my prayer room, मैं अपने प्रार्थना के रूम में बैठा हूँ and I want to connect with God. और मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ. I can't. I don't have peace in my heart. मेरे हृदय में शांति नहीं है. So I asked the Holy Spirit, मैं पवित्र आत्मा से पूछा, Holy Spirit, why am I struggling to go in your presence? पवित्र आत्मा मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ आपकी उपस्थिति में जाने के लिए? Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, you fought with the flesh, तूने अपने शरीर से लड़ा है, but you cannot enter the kingdom of God with the flesh. पर तू परमेश्वर के राज में शरीर से अंदर नहीं घुस पाएगा. And he reminded me of a scripture in Matthew, और उसने मेरे को मत्ती में से एक आयत याद दिलाई which says, जो ऐसी कहती है, if you bring your gift to the altar, अगर तुम वेदी पे अपना तोहफा लेके आते हो, and when you come to the altar, जब तुम and then you remember your brother has something against you, तुम अब याद रखते हो कि तुम्हारा भाई के पास leave your gift there, अपने गिफ्ट तोहफे को go छोड़ो, to your brother, अपने भाई के पास जाओ, reconcile, जाओ और मेल मिलाप and then करो, come back, फिर वापस आओ, then give the gift. फिर तोहफा दो. I understood the assignment. मैं उस असाइनमेंट को समझ I गया. called my uncle. मैंने अंकल को कॉल किया. He was angry वो गुस्सा थे because I had also hurt him by my क्योंकि मैंने words. भी उनको अपने वचन के द्वारा बुरा माना था. I said, Uncle, I'm sorry. मैंने कहा अंकल मेरे को माफ करिए, I said a lot. मैं बहुत कुछ कह दिया, Shouldn't have said that. नहीं कहना चाहिए था. Sorry for my words. मेरे वचन के लिए माफ. I own my words. मैं अपने वचन के लिए Some responsibility people, लेता हूं. they always keep blaming others. और कई लोग हमेशा दूसरे लोग को They ही don't want to take responsibility दोष of दे their देते हैं. words. वो अपने खुद के वर्ड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. And when you hear the Holy Spirit, I'm telling you,
और जब आप पवित्र आत्मा, तो मैं आपसे कहना चाहता The हूँ, Holy Spirit will make you feel responsible for your words, for your actions. और पवित्र आत्मा आपको आपके जो आपने मुंह से बोले वचन है और आपके कामों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल फील कराएगा। The moment he said, "It's okay, son, I forgive you," और जिस पल उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, I came back to my prayer मैं room, अपने प्रार्थना के कक्ष में आया, sat down in prayer. प्रार्थना में बैठा, The moment I sat, और जैसे ही मैं बैठा, God's presence just opened up on me. परमेश्वर की उपस्थिति खुल गई। Whenever the Holy Spirit reminds you of the righteousness of जब- Jesus in your life, और जब भी पवित्र आत्मा आपको धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता को अपने जीवन के ऊपर दिखाता है, you will always feel accepted and loved by the Father. और आप हमेशा पिता के द्वारा प्यार किए और ग्रहण Are किए you guys जाते हैं। getting it? क्या आप समझ रहे हो? आप लोग समझ रहे हो ये बात? Can you say yes or no? क्या आप हाँ या ना कह सकते हो? I know this might not be exciting, but I feel like this month a lot of you are going to develop your relationship with the Holy Spirit. और मैं जानता हूँ कि हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक ना लगे, पर मैं जानता हूँ कि इस महीने आप पवित्र आत्मा के साथ एक But रिश्ते if को you know बनाओगे। all of this, अगर आपको ये सब कुछ पता है, your life will be so easy. और आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। Okay, let's go to the judgment part. उसके बाद हम न्याय पे जाएंगे। Are you ready? तैयार हैं आप लोग? This is going to be exciting for some people. ये कुछ लोग के लिए एक्साइटिंग रहेगा। Okay, are you ready? तैयार हैं? Can we read that scripture which says judgment because the ruler of the world has been judged? 11। Can we go to verse number 11? Same chapter, verse number 11. Yeah. Are you ready? Let's go. Read it. और तुम मुझे फिर ना देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। वहां पे ऐसा लिखा है क्या कि दोषी ठहराया जाएगा? गया है। गया है मतलब हो गया है, ठीक है? श्योर? Okay, can you speak that in English as well? And what has been written there in the 11th verse? Is it like the Lord is going to judge The devil the devil, or he's been judged? already. Is the devil being judged already? क्या शैतान का न्याय हो The गया people है? with the English Bible, I'm talking to जो you. लोग इंग्लिश की बाइबल है, Does it says judged or does it say he will judge? Judged. If the devil is already judged, अगर शैतान को पहले से ही न्याय हो चुका है, that means का मतलब है you and I आप और मैं don't have to fight the enemy now. आपको और मुझको अब शत्रु से लड़ने की जरूरत नहीं आप है। बोलोगे पास्टर ये क्या बोल रहे हो आप? You might speak, oh, Pastor, what should we do? What are you speaking? Okay, let me take you to some scriptures. Are you आपको ready? कुछ आयतों में लेके जाऊंगा। तैयार हो आप? Are you ready with your Bible? बाइबल का तैयार हो? Let's go to Colossians कुलुस्सियों पे जाएंगे। 2:15. Okay, we're going to be 2:15 quick. Okay, जल्दी जल्दी जाएंगे। Colossians 2:15. कुलुस्सियों 2:15। And we're going to read it together. और हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। Hmm? How many of you got it? Can you say amen? आपने Amen. मित्रों को Okay, लेकर let's लोग read it कहेंगे। together. Come on. और उसने प्रधानों और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Okay. मेरे साथ बोलो, यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने शैतान को हराया शैतान को हराया, पर वहां रुका नहीं। पर वहां रुका नहीं। उसको ठेले पे बिठाया, को ठेले पे बिठाया, उसके ऊपर टमाटर की माला लगाई उसके ऊपर टमाटर की माला लगाई, और फिर उसको पब्लिक में लेकर गया एंड उसको पब्लिक में लेके गया, और सब उसको देख के हंस रहे थे। एंड सब उसको देख के हंस रहे थे। अब एक बात बताओ, जिसको यीशु ने ऑलरेडी हरा दिया, एंड whom Jesus has defeated already, उसके गले में ऑलरेडी टमाटर की माला है, and he already has this garland of shame over him, उसका एक दांत ऑलरेडी टूटा हुआ है, and his one teeth is already broken. वो क्या लड़ेगा आपसे? What will he fight? पर हमको ना ये ट्रेन किया गया है, But we've हमको been लड़ना trained है, that we have to fight. हमको लड़ना We है। have to fight. बाइबल दो वर्ड्स यूज करती है। Bible is talking about two words here. एक वर्ड इफिशियंस 6 में लिखा है स्टैंड। One word in Ephesians 6 it पढ़ेंगे, says, चलो पढ़ेंगे। खड़े हो। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक खड़े है? रहो। इफिशियंस 6:14 इफिसियों 6 और उसका देखो 14। क्या लिखा हुआ है वहां पे। What is it right? 6 का 14, 6:14, इफिशियंस 6:14। ओ 13. ओके, हिंदी बाइबल वालों के लिए 13 है। ओके, इंग्लिश बाइबल में स्टैंड से शुरू कर रहा है, पर लेट्स गो फ्रॉम 13। चलो लेट्स गो। आर यू रेडी? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द वर्ड? कैन यू से आमेन? ओके, लेट्स रीड इट टुगेदर लाउडली।
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। हिंदी बाइबल ने ओमिट कर दिया है, स्थिर रह सको। स्थिर रह सको। स्थिर रह सको लिखा है आपकी बाइबल में? हाँ, हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश बाइबल, डज इट से स्टैंड देयरफॉर? डज इट से स्टैंड? स्टैंड मतलब क्या होता है? खड़े रहना मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंड? खड़े रहना मतलब क्या होता है? डज स्टैंड मीन्स फाइट? क्या खड़े रहने का मतलब है? लड़ना। कह रहा है हथियार पहनो। It's है ना? saying take up your armor, आपने हेलमेट पहना, you put on the helmet, आपने ब्रेस्ट प्लेट पहनी, आपने झिलम पहन लिया, आपने पूरा पैर पे वो पहना, you put on the leg armor, गॉस्पेल शूज ऑफ पीस पहना, shoes पहन, you wore the shoes, बेल्ट ऑफ ट्रूथ पहना, सच्चाई का शील्ड पटुका, ऑफ फेथ लिया, विश्वास की स्वॉर्ड ढाल ऑफ ली, स्पिरिट लिया। और वचन की आत्मा पौलुस कह रहा है लिया। खड़े रहो। And he said stand. हमने क्या सुना है अभी तक? What have we heard? सब ले लो और लड़ो। And take up everything and fight. पौलुस बोल ही नहीं रहा है, बस Paul is not saying that. घर जाके अच्छे से पढ़ना। You can read it. गलत शिक्षा नहीं दे रहा हूँ I'm आपको। not giving you a wrong teaching. पूरा पढ़ना, क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। You might have questions you can पर ask. me. पौलुस कह रहा है But ये Paul is saying- सब पहनकर खड़े हो जाओ। And Paul is saying just stand after wearing all of this. पता है क्यों? You know why? बताओ, रीजन सुनने के लिए तैयार हो? Are you ready to? अगर एक आदमी पजामे और टी शर्ट में घूमता रहे, If a man is wearing pajama and t-shirt, and भले he's वो roaming बहुत around, बड़ा सोल्जर है, he might be a big soldier. आप डरोगे क्या उससे? Will you fear him? बोले अरे आम आदमी है ना, He'll आम say he's आदमी a common पार्टी का man. नहीं है, आम आदमी है। ओके, He's a common man. बट अगर वही आदमी, But that same man, क्योंकि वो वॉरियर है, because he's a warrior, अगर वो अपनी तलवार ले ले, he takes his sword, पूरे कपड़े पहन ले, wears his और फिर armor, आपके सामने खड़ा हो and then जाए, comes and stands in front of you. अब आपकी सोच क्या होगी? And what will you now think about that man? यार ये अलग है यार, This man is different. है ना? Right. इसलिए पौलुस कह रहा है That is why Paul is saying, हमारी लड़ाई है, we have a fight, yes. आत्मिक लड़ाई है, We have a spiritual शारीरिक fight, नहीं yes. है। It's not physical. पर उस लड़ाई में But in that fight, तुम तैयार होके खड़े रहना, just stand ready. क्योंकि तुम्हारा शत्रु टमाटर वाली माला लेकर आएगा। Because your enemy is gonna bring a garland. ऑलरेडी बहुत मारा यीशु ने उसको क्रूस पे, And already Jesus has beat him in on the cross. ऐसे करके आएगा वो, And he's gonna come lame. The enemy is gonna come क्योंकि lame. हाथ पैर तोड़ दिए Because Jesus has broken his legs and और feet. यीशु ने हीलिंग नहीं दी उसको, पहले Jesus is बता not रहे giving हो। healing. नो मर्सी जोन था, He is in the no mercy zone. दाएं से भी मारा, बाएं से भी मारा, वो पूछा बता किसने मारा? And Jesus kicked him and asked who. सब जगह से मारा यीशु ने, And Jesus beat him on all the खुल्लम sides. खुल्ला तमाशा He बनाया, made a show of the devil. और फिर अपनी सारी ताकत And then his whole strength, यीशु ने एक विश्वासी को दे दी। he gave them to the disciple. बोला अब तुम लोग इस ताकत को लेकर बस खड़े हो जाओ। And then he said, just be पता है, ready. शैतान आपके नाम से नहीं डरता। And Satan is not afraid of इफिसियों or your एक name. अध्याय कहता है कि यीशु मसीह का नाम सारी प्रधानता अधिकार के ऊपर शिरोमणि करके ठहरा दिया गया है। And Ephesians 1 says that Jesus' name has been kept above all the power and the authority and the principalities. हाँ, सारी प्रधानता और अधिकार के ऊपर ठहरा दिया गया And है। his name is above all powers and principalities. इतना बड़ा कर दिया है कि स्वर्ग और नरक उसके सामने झुकता है। And he is so big that heaven and hell bows to Jesus. और पता है वो नाम किसको दिया है? And you know who has this name been given to? It's you आपको and और me. मुझको। It's you and me. हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, वो नाम किसको दिया है? Who has this name been given to? आपको और मुझको। You and me. ठीक है, Okay? एक कहानी सुनने के लिए तैयार हो? Are you ready to मजेदार। hear a story? एक भाई साहब थे, वो दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, And there was one brother who was taking out a demon. उन्होंने बहुत सारे नाम लिए। And he took a lot of names. इस नाम से निकल जा, Come out of this name. पौलुस के नाम से निकल जा, Come out of Paulus's name. मोक्ष के नाम से निकल Come जा, out of Moksha's name. प्रिंस के नाम से निकल Come out जा। of Moksha's- तो Prince's दुष्ट आत्मा name. जाए ना, The demon was not leaving the person. मैं नहीं जाऊंगी। She was not leaving the person. फाइनली उस बंदे को थोड़ा दिमाग आया, Finally, that person understood. आखिरी में बोला यीशु के नाम से निकल जा। And then in the end, नहीं it नहीं नहीं says, नहीं, "Come ये out of नाम मत Jesus." लेना। And he said, "No, take this name." पता है क्यों? You know why? उस नाम को अधिकार है, His name has power. उस नाम को अधिकार है। His name has authority. हाँ, आपने जब पुलिस वाला चेक पॉइंट पार किया और अगर आपको रोक लिया, आपने बोला मैं कलेक्टर का जानता हूं, तो पुलिस वाला बोलेगा उसका नाम क्या है? आप बोलोगे प्रमोद कुशवाहा। पुलिस वाला बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों? उस नाम को अधिकार है। And you come to a police checkpoint and the police stops you and then you are like, I would call the collector if you would stop me here. And the police is like, do you know the collector? And he's like, Pramod Kushwaha. And the प्रमोद police कुशवाहा will को let you go. भोपाल के ऊपर कलेक्टर होने का अधिकार है। पुलिस वाला नाम सुनते ही क्या बोले? भाई जाओ, आप जाओ, बाकी And- मोक्ष भाई तुम 500 दो, विनय भैया आप जाओ।
The collector has the power over the police. So if they hear that you're a friend of the collector, the police would be like, yeah, you can go, you can आप go. सोच के देखो, शैतान वैसे ही पिटा है, वो बीच बीच में आपको रोकने के लिए आता है. And you think about this. Satan is already beaten up and defeated, and then he comes to you for in between. अगर आप जबरदस्ती आंख बंद करके तलवार चलाओगे ना, कुछ नहीं होगा. And if you close your eyes and you keep Swinging the sword, nothing's gonna happen. कुछ नहीं होगा. But the moment you go like in the name of Jesus, पर जिस पल आप जाते हो यीशु के नाम I से, stand in His righteousness. मैं उसकी धार्मिकता में I खड़ा stand हूँ. in His truth. मैं उसके सच पे खड़ा हूँ. I stand. और मैं खड़ा हूँ. You know, you are resisting the devil. James 4:7. Or resist the devil, submit to God, and devil will flee from you. और याकूब 4:7 वो ऐसा कहता है कि जब तुम परमेश्वर को समर्पित करते हो और शैतान का सामना करो, तुमसे भाग जाता है. हाँ मोक्ष भाई जल्दी आओ, जल्दी आओ. ठीक है, ये देखो, ये पूरा वर्दी लेके खड़ा हुआ है. ठीक है, हाँ, खड़े रहो बस. And he's taking up the whole armor. ठीक है, और प्रिंस भाई ना शैतान की तरह आ रहे हैं इससे थोड़ा बहुत लड़ने के लिए. And he's come to fight. ठीक है, पर ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा He's हुआ है. standing there. ठीक है, प्रिंस भाई ने इनको पंच करने की कोशिश की, पर कहाँ लगा? आर्मर में. It was on the armor. धार्मिकता. Righteousness. किसकी धार्मिकता है? Whose righteousness? यीशु की. Jesus' righteousness. फिर प्रिंस भाई एक और मुक्का लेकर आ रहे थे, इधर से इन्हें शील्ड ऑफ फेथ निकाल दिया. ये शील्ड ऑफ फेथ किसका है? And what? फेथ किसने दिया? Which is the shield of faith? यीशु ने दिया. It is the shield of faith that ठीक है? Jesus gave you. तो इसने सोचा नहीं अब मैं इसके पैर में अटैक करता हूं. पैर में क्या पहना हुआ है? And he गॉस्पेल was- शूज ऑफ पीस. And what was he wearing on his legs? Gospel shoes of peace. गॉस्पेल लेकर कौन आया? Who did the gospel was brought by whom? यीशु मसीह. Jesus ये brought the बंदा gospel. पूरा ढका हुआ है यीशु Man मसीह is से. covered with Jesus. ये पंच मार रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा. And he's punching and nothing is happening. अभी आखिरी में इसका दिमाग खराब हो जाता है. And then in the end, his mind is boggled up. हाँ, ये बोलता है भाई सुन, यीशु के नाम से अब तू जा. And he speaks, in the name of Jesus, you go away. और ये स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट लेता है. And he takes the sword of spirit. इतना ही चाहिए बस. And this is that what we need. स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट यूज कैसे करते How हो? to use the sword of spirit? शब्द बोल के. By speaking the word. यीशु के नाम से बूम. In the name of यीशु Jesus. के नाम से बूम. इतना आसान है. आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, बस इतना सा कर दोगे वो वहीं गिर And you जाएगा. don't have to go crazy with the sword. You just have to speak and it's done. बस मुंह से बोलना है. Just speak it. बोलो मुंह से बोलना है. Like, speak it. हाँ, एक बार और मुंह से बोलना है. Speak it with your mouth. ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ This आपको. is an example. आपके शब्दों में क्या ताकत है? Your words have power. मोक्ष भाई लाइट बंद करना. मैंने क्या किया? What did I do? You spoke. काम किसने किया? Who worked? मोक्ष लाइट ऑन करना. Moksha switch on the light. मैंने फिर से शब्द बोला. Again I spoke the word. अगर आप वचन बोलोगे If you speak the तो क्या word, परमेश्वर आपके लिए काम नहीं करेगा? will God not work for you? हाँ? जिसने वचन दिया, अगर वही वचन आप उसको याद दिलाओगे, क्या वो काम नहीं करेगा? The one who gave you the word, if he reminds you of that same word, will he not work for you? हालेलुया. Hallelujah. शैतान से डरना बंद कर दो. Stop fearing Satan. बंद कर दो. Stop fearing Satan. लड़ना भी थोड़ा कम कर दो. Stop fighting him. कई as लोग well. आत्मा में एकदम जाते हैं, चीखने लगते हैं शैतान के ऊपर. And some people go in the spirit and they're shouting. अरे भाई मुंह से शब्द बोलोगे, शैतान भाग जाए यीशु के नाम से, ऐसे ही भाग जाएगा. And if you just speak it from the mouth, Satan, go in the name of Jesus. क्योंकि He'll run. क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया है, Because we have not been taught. हमने पैटर्न बना लिया. We made a pattern. हर बार प्रार्थना करेंगे, Every time we शैतान pray. से लड़ने जा रहा हूँ. Satan, I'm here to fight you. कौन भेज रहा है आपको? Who has sent you? पता नहीं, मैं तो जा रहा हूँ. Who has sent you? I don't अरे know. तो I'm मत just जाओ. going. जब यीशु जहाँ भेज नहीं रहा है वहाँ क्यों जा रहे हो And भाई? if Jesus is not sending you to go to war, why are you going to war? तुम तो खड़े रहो. You just be there धार्मिकता का झिलम. by wearing the breastplate of righteousness हाँ, तलवार लेकर खड़े रहो. with the sword. वो आएगा, The दो Spirit. चार बार इधर उधर कुछ करेगा, He might try to puke you. उसको रेजिस्ट करो, Resist him. परमेश्वर को सबमिट करो, Submit to God. शैतान भागेगा. He will flee. हालेलुया. Hallelujah. एक मैं किसी से बात कर रहा था. And I was talking to someone. ठीक है, कुछ सीख रहे हो ना? Are you learning something? किसी से बात कर रहा था, कह रहे भैया मेरा जीवन दुष्ट आत्माओं ने बर्बाद कर दिया. And that brother was like, Bhaiya, my demons have destroyed my ऐसा life. चेहरा ऐसा, भैया मेरा जीवन दुष्ट आत्माओं ने बर्बाद कर दिया. And his emotions are like this. He's like, demons have destroyed my life. भैया मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ भैया. I'm struggling, Bhaiya. तो मैं बोला कि अच्छा And I said, yeah. क्या कर रही है दुष्ट आत्माएं? What are the demons doing to you? भैया मैं कर्जे में जाता जा रहा हूँ, भैया ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है, वो होता जा रहा है. मैंने बोला आपने क्या किया? And he told me that I'm going to debts and this is happening and that is happening. And I said, what have you done? भैया मैं युद्ध कर रहा हूँ.
He said, I am fighting. कितने दिन से युद्ध कर रहे हो? And I asked him, from how many days have you been 1.5 fighting? महीना हो गया भैया. It's been 2 months मैं बोला now. भाई ऐसा कौन सा युद्ध है 1.5 महीने से लड़ रहे हो तुम जीत ही नहीं पा रहे हो. And I asked the guy, which kind of war is this? You've been fighting from 2 months and you've not पता है won the हम war. हारते क्यों हैं? You know why we are defeated? जो वॉर हमको उठानी नहीं है हम उसको जबरदस्ती लड़ने लग जाते हैं. And the war that we are not supposed to take, we take that war. हाँ? जो वॉर हमको लेनी नहीं है हम जबरदस्ती ले लेते हैं. अरे आओ आओ लड़ो लड़ो लड़ो. And the war that we're not supposed to be part of, we take that war. दानियल 21 दिन का उपवास करा. Daniel was fasting कितने for दिन का? 21 days. थोड़ा जोर से बोलो कितने दिन का? For 21 days he was ठीक है. fasting. और 21 दिन का जब उपवास खत्म हुआ And when that 21 days तो fast वहां was पर over, लिखा हुआ है and it is written there, एक स्वर्गदूत आया जिसका नाम गैब्रियल था. an angel come whose name was Gabriel, उसने बोला आत्मा में मलयुद्ध चल रहा था. and he said there is a war happening. मुझे प्रिंस ऑफ पर्शिया के दुष्ट आत्मा ने रोक रखा था. And the demon of the prince of Persia had stopped me. मैं तो पहले दिन ही उत्तर लेके निकल गया था तेरे लिए. I was there taking that answer, पर वो दुष्ट आत्मा ने रोक रखा था. but that demon had stopped me. पर अब मैं उत्तर लेके आ But गया. I've now brought the answer. मैंने बोला भाई साहब ये क्या हो रहा है? And I said, what is happening here? हम तो 21 दिन में उत्तर नहीं आए तो हम तो गला ही खराब कर लें युद्ध कर करके अपना. If the answer does not come in 21 days, you will keep shouting and destroy our vocal cords. हम तो शैतान को खुद ही जाके स्वर्ग में मार के नीचे आ जाए इतने लेवल पे चले आते हैं. And you will go into such a level that we will destroy Satan in hell और over there and then come back. मैंने दानियल को देखा. पता है दानियल क्या कर रहा And you है? know what Daniel was doing while he was there? उसके चेहरे की खोज कर रहा है 21 दिन तक. He was seeking the face of God for 21 days. डैनियल का दिमाग दुष्टात्मा पे नहीं है. Daniel's mind was not on the डैनियल का demon. दिमाग मलयुद्ध पे नहीं है. Daniel's mind was not on warfare, डैनियल का दिमाग परमेश्वर पे. but his mind was on God. मेरा परमेश्वर क्या बोल रहा है? What is my God speaking? मैं उपवास कर रहा हूँ वो मुझे उत्तर देगा. And I am fasting, he will give me an answer. जिस व्यक्ति का भरोसा परमेश्वर पर अटूट है हो ही नहीं सकता आपका मुंह काला हो. A person who trusts his God fully, it will never happen that you'll be ashamed. हो ही नहीं सकता आप शर्मिंदगी से होके जाओ क्योंकि जिस पर आपने भरोसा किया है वो आपके चेहरे को झुकने नहीं देगा. ये उसका प्रॉमिस है. And you will never go through shame because you've trusted him. He will never let you fall. पर आप पता है क्यों हार रहे हो? And you know why you're being defeated again क्योंकि and जो again? युद्ध यहोवा को लड़ना चाहिए वो आप लड़ रहे हो. Because the fights that the Lord is supposed to fight, you're fighting those fights. जो युद्ध उसके दूतों को लड़ना चाहिए वो आप लड़ रहे हो. And the fights that the angels have to fight, you're fighting those और फिर fights. आप इरिटेटेड हो. And then now you're इस irritated. दुष्ट आत्मा से थप्पड़ खाया, उस दुष्ट आत्मा से थप्पड़ खाया, इस दुष्ट आत्मा ने रात में मेरा फ्रॉक खींचा. And this demon slapped me, that demon slapped me, somebody snatched my frock. मैं बोला भाई स्वर्गदूत आपका फ्रॉक क्यों नहीं खींचते? And I was like, why don't the angels snatch your frock? भैया वो दुष्ट आत्मा आती है मेरा बिस्तर हिला देती है. मैं कहता हूँ स्वर्गदूत तुम्हारा बिस्तर क्यों नहीं हिलाते? And you're like, Bhaiya, that demon comes and shakes my bed. I'm like, why don't the angels shake your bed off? क्योंकि पता है हमारा पूरा ध्यान कई बार सिर्फ दुष्ट आत्मा पर है. Because a lot of times our heart is just focused on demons. पर आज पवित्र आत्मा मेरे मन में ये डाल रहा था मैं आपको ये सच्चाई बताऊं वो ऑलरेडी जज्ड कर दिया गया है. But I felt like I just want to tell you this truth that the devil has been judged. And you have all power and he has none power. और आपके पास पूरी सामर्थ्य है और शैतान के पास कोई सामर्थ्य नहीं है. Jesus said all power has been given unto me. So therefore you go preach the gospel and bring the power of God and heaven on earth और through my यीशु ने name. कहा कि सारी सामर्थ और अधिकार मेरे को दे दी गया इसलिए तुम जाओ सुसमाचार का प्रचार करो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा See दो. if Jesus has all the power, अगर यीशु के पास पूरी सामर्थ है, 100% पावर अगर यीशु के पास है, if Jesus has 100% power, शैतान के पास कितनी है? how many power does the devil have? 100 का रेशियो उल्टा क्या होता है? What is the opposite of 100? Sure? 0. बेसिक मैथमेटिक्स. ये बिठा लो दिमाग में. Then write it on your head. If he comes, अगर वो आता है, वो बिना ताकत के आ रहा है he comes without power. और आप पूरी ताकत में खड़े हो. You are standing in full power. आपको हिला नहीं सकता वो. He cannot let you be shaken. कितने लोग मच्छर से हिल जाते हैं? How many of you are moved by a मच्छर उड़ते हुए आ रहा है mosquito आपके पास and the mosquito is coming towards you और आप ऐसे हो जाते हो, ओ. and you're like, oh, नहीं, आप क्या करोगे? you just come and hit the mosquito. भाई यही करना है अब.
You just have to come and hit the mosquito. और वो गिरता जाएगा और आप उठते जाओगे. And the devil will keep falling Tonight and I'm will keep giving you the rising. secret to walk in victory with और मैं Jesus. आपको आज एक रहस्य दे रहा हूँ विजय में चलने Stop का. being demon focused. और दुष्टात्मा की तरफ ध्यान देना बंद कर दो. Stop being warfare focused. लड़ाई की तरफ, युद्ध की तरफ, मलयुद्ध की तरफ ध्यान देना If बंद कर God दो. leads you into warfare, it is good. अगर परमेश्वर आपको मलयुद्ध में लेके आता है ठीक है. If He doesn't, अगर नहीं, like Daniel, seek His face. दानियेल से उसके चेहरे को देखते रहो. Because the ruler of the world has been judged. क्योंकि इस दुनिया का जो न्याय है वो उसका न्याय हो चुका है. Did we all learn something क्या आपने tonight? कुछ सीखा आज? Did the word go in you? क्या वचन आपके अंदर गया? So I'm not going to deal with truth because my time is kind of over. I'm just going to give you 3 things about the Holy Spirit. He convicts us of sin, He helps us to walk in righteousness, and He tells us every time that God has judged the devil. और मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा हमें पाप के लिए कायल करता है, हमें धार्मिकता में लेके चलता है और वो हमें बताता है कि उसने शैतान को पहले से न्याय कर दिया है. Last scripture for tonight. आज के लिए आखिरी आयत. You ready? तैयार हैं आप? 1 John पहला यूहन्ना chapter 2. उसका दूसरा, 1 John chapter 2. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय. Okay? And we're going to read verse number 13 and 14. तो 13 और 14 पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. और मैं चाहता हूं हम सब खड़े हो जाएं. ठीक है. और ये शब्द आप ऐसे जोर से पढ़ना, धीरे मत And पढ़ना. I want you all to stand up and I want you to shout when you read this verse. तैयार हो आप? Are you ready? ये 2 स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए तैयार हो? Ready to read these 2 verses? Are you ready? तैयार हैं आप लोग? Oh, I can't hear any voices. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Okay, let's read with Prince Bhai. Come on. हे पितरों, मैं तुमसे इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो. हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है. Okay, क्या कह रहे? हे जवानों? क्या कह रहे? Youths, कितने लोग यूथ young हैं? men, यूथ हो? you're young men. क्या कह रहा है आपसे? What is he saying? क्या कह रहा है? जय पाओगे कि जय? What is it saying? You have victory. You will have victory or have you already got victory? क्या कह रहा है? क्या आपको What is जय it saying? मिलेगी कि जय मिल गई है? हैं? ये एक लाइन फिर से पढ़ो जितने जवान लोग हैं. ठीक है? Are you ready? तैयार हैं आप लोग? Okay, louder. Okay, ready? 1, 2, 3, go. हे जवानों, मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर Come जय on. पाई है. So good. Keep reading. Yeah. आगे पढ़ेंगे उसके बाद. हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए कहा कि तुम पिता को जान गए हो. हाँ. हे पितरों, मैं तुमसे इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो. हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है. एक ही चीज को यूहन्ना 2 बार रिपीट क्यों कर रहा है? And why is John repeating? पिछले this स्क्रिप्चर one में thing भी बोला, two हे times? जवानों, तुमने At that दुष्ट point पर he जय said, पाई young है. men. Yeah. At that point he said, young men, you have victory over the devil. एंड देन 14 स्क्रिप्चर में फिर से बोल रहा है, हे जवानों, वचन तुम्हारे अंदर है, तुम बलवंत हो. क्या हो? And in the 14th verse it says, अरे, हाँ. in the 14th verse it says, young men, you have victory over the devil. You have the word of God living in you and you are strengthened. ये कौन से बल की बात कर रहा है? What strength is this वचन talking से about? जो बल आता है आपके अंदर. The strength that comes from the word of God. हाँ, बोलो, वचन से बल आता The है. strength that comes from the word of ठीक है? God. आप आत्मा में मुरझाए और क्या बोलना चाहिए, माल न्यूट्रिशन नहीं हो. And you are not frowned or malnutritioned in the spirit. नहीं, वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कुपोषित नहीं हो आप आत्मा में. You're not पड़ोसी को देख के बोलो, कुपोषित नहीं हो. Speak करें और कुपोषित नहीं. बोलो, बलवंत हो You're not malnutritioned, वचन के कारण. but you're strong because of the ठीक word. है? और 2 बार कह रहा है, तुम ऑलरेडी जय पा चुके हो उसके And it's ऊपर. saying 2 times that you already have the victory. हाँ? Now, what if you're struggling with sin? क्या होगा अगर आप पाप से संघर्ष कर रहे हो? भैया मैं तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ. I have not seen victory. और भैया I'm still struggling और मैंने जय को नहीं देखा है. Don't worry. Let this truth go in your heart. You will walk out of sin. चिंता मत करें, इस Yeah. सच को अपने मन के अंदर जान दे और आप जय को Because पाएंगे. truth will always set you free. क्योंकि सच हमेशा आपको आजाद करेगा Lie will bind you. और झूठ आपको बांध देगा. Truth will free you. सच आपको आजाद कर देगा. Amen. Amen. आप शैतान से डरो मत. शैतान पैर के नीचे होने चाहिए. And you don't have to fear Satan. He's under your feet. हाँ. थोड़े दिन पहले मैं और मुस्कान बात कर रहे थे. हम एक घर में जा रहे थे. वहां पे सब लोग बीमार थे. मैंने बोला, यार अलाइजा को ना हो जाए. मुस्कान कहती है, अरे कैसी बात कर रहे हो, हम परमेश्वर की संतान है, ऐसे कैसे हो सकता है हमको बीमारी हो जाए. वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया उसको?
वचन से. And a few days before, we were going to a place, and over there everybody was sick, and Pastor Joshua was telling Pastor Muskan like, everybody is sick, what will you do about Elijah? And Pastor Muskan suddenly goes like, why are you fearing this sickness? We are the children of God. Where did this confidence come from? It came from the word. वचन से कॉन्फिडेंस आता है. The confidence comes from the word. हाँ, अभी कॉमन है, सब लोग ना, मैं देख रहा हूँ एक फ्लू चल रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है. मैं बोल रहा हूँ आपके ऊपर वो फ्लू काम नहीं करेगा, मेरे ऊपर वो फ्लू काम नहीं करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं. And I'm telling you, this flu will not work against us. There's this flu going on in the environment, but this flu will not work against us because we are the children of God. डॉक्टर्स कहते हैं नेचुरल है. Doctors say it's natural. मैं कहता हूँ आप नेचुरल इंसान हो ही नहीं, आप तो सुपर नेचुरल And इंसान I'm हो. telling you, you're not a natural person, you are a supernatural person. हाँ, आप तो सुपर नेचुरल इंसान You're हो. a supernatural तो person. अपन वहीं जीते हैं. So let's live there. और जब मुस्कान ने मुझे चार्ज किया, And then Pastor Muskan, when she मेरा charged डर Pastor अंदर से Joshua, चला गया. and that fear went away. ठीक है. Okay? वचन बल देता है The word gives you strength. और वचन ऑलरेडी कह चुका है आप जय पा चुके हो. And the word has already said that you Come on, have अपनी आंखों को victory. बंद करो. Close your eyes. Father, I bless them tonight. पिता, मैं इनको आशीष देता हूँ. I pray that this word they will be rooted in this और मैं word. प्रार्थना करता हूँ कि ये इस वचन में जड़ पकड़ेंगे And they will not fight unnecessary और ये wars. जबरदस्ती की लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे. But this month they will live deep with the Holy और Spirit. इस महीने वो पवित्र आत्मा के गहरे चाल चलन में चलेंगे That their relationship with the Holy Spirit will grow. कि उनका पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बढ़ेगा. Knowing that they are already victorious. ये जान के कि वो पहले से ही जय पाए. None of them are a loser in इनमें Christ. से कोई भी मसीह में हार माना हुआ नहीं है, They are victorious in Christ. पर वो मसीह में विक्टोरियस है. By Jesus' name they have power over sin, यीशु के नाम से इनके ऊपर पावर है सिन की, power over the devil, शैतान के ऊपर पावर है, power over all his forces. सारी ताकतों के ऊपर पावर है. And not only that, they are seated with Christ in heavenly पर वो places. यीशु मसीह के साथ स्वर्ग स्थान में बिठाएगा. So I bless them, और Lord. मैं इनको आशीष देता हूँ As प्रभु. their pastor, I bless them. और उनके पास्टर के नाते मैं इनको आशीष That देता हूँ. each of them will walk in crazy victory. इनमें से हर एक जन क्रेजी विक्ट्री में This चलेगा. week will be a week of victory after victory after victory in the name of और Jesus. ये हफ्ता जय से जय में चलेगा. And I decree and declare that none of them will fail ever, but they will be victorious in wherever they go. और मैं ये घोषणा करता हूँ कि इनमें से कोई भी जन नाकाम नहीं होगा, पर वो जहां पे भी जाएंगे वो जयवंत होंगे. If till tonight they have not seen victories, I speak a change. From tonight they will start seeing the victories in Jesus' name. अगर आज तक उन्हें जय नहीं देखी, पर मैं ये बोलता हूँ कि आज से वो जय को देखना चालू करेंगे. Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for you've heard me. तूने मेरे को सुन लिया है. And we are going to see mighty testimonies coming out of it. और हम बहुत अच्छी टेस्टिमनीज को देखेंगे, Because this revelation is going to help them to walk in क्योंकि victory. ये प्रकाश उनकी मदद करेगा उनको चलने में. In the mighty name of Jesus, we all यीशु के say, नाम से हम कहेंगे Amen. Can we Amen. give a huge round of applause for Jesus and His word?